ओके, सो आपके जो लॉजिक फंक्शन है उसको दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था। एक तो है एसओपी फॉर्म में, ओके, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, okay, and the another one is, okay, product of sum. इन दो फॉर्म में हम किसी फंक्शन को लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आई हैव ए थ्री वेरिएबल फंक्शन ए बी सी, ओके, सो इफ इट इज रिटन लाइक ए बी a bar c and b c, okay, so as you can see this is the product, this term is product of a and b, okay, similarly this is the product of a bar c and b c, so they are in product, okay, and we are doing sum of these products, okay, that's why this term is in the form of sop, okay, this is called sum of products, okay, this sum of product form. Now as I told you yesterday, this is the three variable function, okay, so now here we have a b but c is missing, here a bar c b variable is missing, similarly here a variable is missing, so this is the sop, but this is not a standard sop, okay, so if I want to make standard sop, I can convert this term into standard sop. How? So if I have a b c, I can write c is missing here, so I can write b c plus c bar, okay, a b is missing here, I can write b plus b bar, okay, similarly here a is missing, I can write a plus a bar bc, okay, so if I solve this one, सर सेकेंड टर्म में सी आएगा ना? एक मिनट, just give me 1 minute, let me find duster. Where is duster? Okay, so no duster, okay, so second term में b आया ना, b c यहाँ पे आएगा, c, okay, plus b, okay, now I can write here this term, I can write this term, I'm writing here, okay, a b c plus a b c bar, okay, plus a b c, okay, and similarly a bar b bar c, okay, plus a b c, okay, and a bar b c, okay. Now this type of representation, okay, this is also sop, this is also sop, but इसमें each term के अंदर तीनों के तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, so this is your standard sop, okay, this is your standard sop, or you can also call canonical sop, okay, canonical sop. So you can call it standard sop or canonical sop, okay. सर आखिरी के दो टर्म रखना है क्या? लिखने हैं ना, सारे टर्म लिखने हैं, सारे टर्म, कुछ छूटा है क्या? नहीं छूटा नहीं है, पर फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टू पार्ट्स मैं भी जो भी मैंने लिखा था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके, सो नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, वी हैव हाउ मेनी टर्म्स, a 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यस, हाँ बोलिए सर एबीसी और एबीसी दोनों बार आ रहा है, तो एबीसी सारे लिख सकते हैं? नहीं, जो दो बार उसको एक बार लिखेंगे, जो दो बार उसको एक बार लिखेंगे, हाँ वही चीज, हाँ जो दो बार आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, ओके, दो बार जो डबल आ रहा है उसको यू कैन सिंप्लीफाई, ओके, इफ इट इज समटाइम डबल यू कैन सिंप्लीफाई, ओके, सो इफ इट इज डबल you can write ABC, okay, A B C bar, A bar B C, A bar B C, okay, and again A bar B C, okay.
So this is your standard form. Okay, एक बार जो दो टर्म रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखना है. Okay, standard SOP. Okay, now हाँ बोलिए. ए बार बीसीबी हम्म, 2 बार हाँ ए बार बीसीबी omit कर A बार BC, A बार 2 बार BC. हाँ इसको भी हटा दो फिर आप. ओके, तो जो भी 2 बार है उसको हटा दो एक बार. ओके, so this is your okay now SOP. Now what is POS? POS. Okay, so for example, if I have some function, okay, FABC, A B C, okay, written in the form of A bar, B bar, okay, B plus C. Okay, so now this is sum. Okay, sum. This is sum. Okay, sum. Okay, and finally we are taking product. Okay, so this term is in the form of your POS. Okay, product of sums. Okay, POS form. Again, this one is not standard POS. Okay, so you can convert it in standard POS. We write A B C. कैसे करेंगे convert? क्या करूं मैं convert करने के लिए? ए बार. ओके, A तो है, B तो है ही है. सो जो बचा हुआ क्या है? C. सो आई कैन राइट C बार. ओके, यहाँ पर B है, C है, A नहीं है. आई कैन राइट A बार B प्लस C. ओके, अब क्या करें? इसको खोल दें डिस्ट्रीब्यूशन से. ओके, इसको एक ही टर्म मान लो. ओके, लाइक वी डू ना A प्लस BC. Okay, how we do A plus B and A plus C. So applying distribution law, we can open these terms. Okay, so I can write A bar B bar plus C. Okay, A bar plus B bar plus C bar. Okay, और इसको भी खोल दो. Yes, sir. A plus B plus C, A bar plus B plus C. हाँ, कोई क्वेश्चन है? सर बोर्ड थोड़ा नीचे जा रहा है. हाँ, थोड़ा सा नीचे जा रहा है. एक स्टेप हाँ थोड़ा सा. अब ठीक है. हाँ सर. Okay, so now the function which I have written here, that is किसी का माइक ऑन है क्या? Which is written is a standard POS form. Is a standard POS form. तो किसी भी ये बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, सर 1 मिनट अभी रफ मत करना. हाँ, पे इसको अच्छे से करना है, आराम से करना है. यही इम्पोर्टेंट है. हाँ, यही हमारे काम सर 1 आने मिनट वाला. साइड होना. हाँ, सर लास्ट सेकंड लाइन एक बार रिपीट. ये वाली नो सर लास्ट सेकंड. लास्ट सेकंड मतलब ये वाली ना. यस सर. हाँ, इसको अपने ओपन कर दिया ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से. ये A बार प्लस B बार है. ओके, इसको हमने C के साथ रख दिया एक बार. फिर A बार प्लस B बार एक बार C बार के साथ रख दिया. ओपन कर दिया. अभी जस्ट थोड़ी देर बताया था मैंने. अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है तो कैसे लगाते हैं? A प्लस B इंटू A प्लस C. सो इसी तरह मैंने A प्लस B को एक टर्म मान के इसको खोल दिया. A प्लस B C फिर इंटू A प्लस B इंटू C. ओके, कर सकते हैं ना? ऐसे नहीं कर सकते? ओके सर. Okay, so now this is your standard POS. Now if you know a Boolean function, okay, so we can write, if you know the Boolean function, we can write is truth table, isn't it? अगर फंक्शन पता है तो उसकी टेबल लिख सकते हैं क्या हम लोग? Yes, sir. Okay, if you know the Boolean function, I can write its truth table.
लाइक वी डन फॉर एंड गेट, एक्सोर गेट। अगर मुझे फंक्शन पता है कि एक्सोर का फंक्शन क्या है, ओके, आई कैन राइट ट्रूथ टेबल। तो सिमिलरली इफ आई नो द ट्रूथ टेबल ऑफ एनी फंक्शन, तो ट्रूथ टेबल से फंक्शन लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ, so that's what we are going to do. Okay, so अगर फंक्शन है तो we can write truth table, and if you have truth table, खाली truth table दे रखा है, अब पूछे फंक्शन क्या है, so we can convert it in function. Okay, so now suppose I have a function. Okay, say a b c. Okay, a bar b, okay, plus b bar c. आप चाहो तो कोई आपका नॉन फंक्शन ले सकते हो, एक्सोर ले लो, एक्सनोर ले लो, या कोई आपका जो नॉन फंक्शन है जिसका आपका ट्रूथ टेबल पता हो, दैट यू कैन टेक दैट फंक्शन आल्सो. ओके, सो आई एम टेकिंग दिस फंक्शन. नाउ इफ आई ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर दिस फंक्शन, ओके, सो आई नीड मोर स्पेस, तो छोटा लिख देता हूं इसको. सो इफ आई f a b c, okay, a bar b plus b bar c. Okay, now I am writing the truth table of this function. I have three functions. Okay, so I need a, I need b, I need c, and I need finally f. Okay, output क्या आ रहा है इस टेबल से? ओके, तो पहले फंक्शन से हम लोग टेबल लिखेंगे, फिर टेबल से फंक्शन निकालेंगे. ठीक है, और टेबल से जो फंक्शन निकालेंगे वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए. So I can write three variable function. So I can write 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. एक बार नीचे चला गया. Okay, so I have to reduce the space. So I need 0, okay, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay, so this is my first row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row, seventh row, and eighth row. Okay, now 0, 0, I can take 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okay, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, now if you put this ABC value, okay, this function will give me 0, 1, 1, 1. Okay, 0, 1, 0, 0. Okay, so I know this function. Okay, I know the truth table. Now इस truth table का यूज करके मुझे फंक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? Now you know, if I want to convert the number into decimal equivalent, okay, this is my table. Okay, now put it here, decimal equivalent, decimal number or decimal equivalent, decimal term. Okay, so now this 0, 0, 0, 0, 0, 0 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? 0. 0 ही आएगा. ओके, सो दिस टर्म इज डेसिमल इक्विवेलेंट इज 0. ओके, 0, 0, 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा. कैसे करते हैं? Yes, sir. कन्वर्जन पता ही है ना? 0, 1, 0 इक्विवेलेंट टू व्हाट? 2. ये तो है। हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ये कन्वर्ट कैसे करते हैं? 0, 1, 0 है. ओके, तो फर्स्ट टर्म को कैसे करेंगे? 2 पावर 0 से, सेकंड को 2 पावर 1 से, थर्ड को 2 पावर 2 से. ओके, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? 2, तो ये 0 हो जाएगा, 2. ओके, सो दिस इज योर 0. किसी का माइक ऑन है? दिस इज योर 2. ओके, सो सिमिलरली if I want to write 0, 1, 1, this is your 3. Okay, 100. Okay, so 0, 0, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, so this is 4. Okay, so this is 4. 1, 0, 1 is 5. Okay, 1, 0, 1, तो ये 1 हो गया, ये 0, 1 and 4. Okay, this is 1, this is 4, so become what? 5. So 5, 6, 7. Okay, so this term is 0, decimal equivalent, this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, you can write. Okay, now I want to write fundamental products. Okay, put the table here, write fundamental products. Okay, और जिसको बोलते हैं min terms, MIN, min terms. Okay, so min terms का मतलब क्या है कि if I want to write my function in the form of SOP,
okay, then 0 is low and 1 is high. Okay, so this is 0. Okay, so I can write A bar 0, B bar 0, C bar. So this is my first minterm. Okay, similarly 0 0 1, so A bar B bar C 0 0 1 0 1 0. Okay, so A bar B C bar. Okay, ऐसे आगे लिखते जाओ 0 A bar 1 1 B C 1 0 0. ओके 1 0 0, तो 1 0 0 क्या हो जाएगा A B bar C bar सी बार A B bar C. Okay, 1 1 0 A B C bar and last term is A B C. ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? ये कॉलम क्लियर है कैसे लिखा? यस सर, जीरो हाँ। को आपने हाँ। इनवर्स जीरो को मैंने और वन को आपने नॉर्मल लिखा है। यस वेरी गुड. ओके, 0 को मैंने क्या लिखा? सर ये हाँ सर ये एसओपी के लिए है ना? हाँ एसओपी के लिए. ओके, फिर किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा माइक बंद कर दिया करो बात बोलने के बाद में, डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत. ओके, सो दिस इज नाउ ये क्या है 0. ओके, तो ये इस टर्म को बोलेंगे M0. इस टर्म को बोलेंगे M0. ओके, मिन टर्म्स M0. ये आपका 1 है, इसको बोलेंगे M1. ये सारी मिन टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर आपका 3 वेरिएबल्स है 2 पावर 3 8 मिन टर्म्स होगी. अगर 2 वेरिएबल है 2 पावर 2 4 मिन टर्म्स होगी. ओके, सो नाउ दीज ऑल आर मिन टर्म्स. ओके, सो दिस इज योर M2, this is your M3, this is your M4, this is your M5, this is your M6, this is your M7. Okay, these all are min terms. Okay, now what I can do if I want to write the function can be written as a sum of min terms. कौन सी min terms? So those min terms for the function value is 1. Okay, now suppose from this table if I want to write my function, इस table का function क्या है? Okay, so what I will write, I will find the terms, okay, for which the min terms or combination रो जिसके लिए मेरा प्रोडक्ट 1 है. ओके, तो यहाँ 1 है, so this is M1. ओके, so M1 is my min term. M1 क्या है? M1 is A bar. M1 क्या होता है? 0 0 0 0 1. ओके, that means A bar B bar C. This is my M1. Okay, after that I have M2. M2 क्या होता है? M2 10. M2 क्या होता है? 10. M2 equal to 10. Okay, that means what? A bar B के B C bar. Okay, similarly third term is 1. Okay, M3 also term for which I have M3 means what? 11. Okay, this is 11 means what? A bar BC. Okay, M3 and then M4 M5 101. Okay, M5 101, that means A B bar C. Okay, so these 5s are min terms for which we have function value 1 1 2 3 4 4 or 5 है 1 2 3 4. This for these 4 min terms. Okay, I have the this function value 1. Okay, so I will take only these min terms. Okay, now if I want to write my function, I can write my function as a sum of min terms. Okay, so if I want to write a function, इसको मिटा दे रहा हूं मैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ तो एक बार ये वाला मिड टर्म वाला आप M1 M2 जो लिए एक बार फिर से समझा दो प्लीज. हाँ हाँ भाई, ये कौन सी टर्म है? ये आपकी M0 है. 0 0 Yes, sir. ये आपकी M0 है. ये वाली टर्म M0 है. ओके, और Yes, sir. M0 का मतलब क्या होता है? ये 0 0 0 M0 है. ओके, तो दैट मींस Yes, sir. दिस मींस A बार B बार C बार. B बार C बार. ठीक यस है, सर. अभी मुझे लिखना है M1 लिखना है, तो M1 क्या होता है? 0 0 0 1. ओके, 001. यस सर. तो 0 क्या होता है? A बार B बार A बार B बार C. वेरी गुड. ओके, ऐसे ही मुझे लिखना है M2 क्या होता है? 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? नहीं सर, इधर हाँ. नहीं, ये जो देखिए साइड लिखे हुए हैं. तो वही तो वही सेम ही तो लिख रहा हूँ. अच्छा, ओके ओके सर. वो टर्म जिसके लिए 1 जो टर्म के लिए 1 है वो टर्म मैंने लिखी है यहाँ पर.
जिस टर्म के सामने फंक्शन ओके सर, ओके ओके वो टर्म्स मैंने लिखी है उधर. ओके. ओके सर, ओके ओके सर. Now if I want to write my function, okay, तो function कैसे लिखेंगे? The function is always equal to function ABC is equal to sum of minterms. Minterms कौन कौन सी है? 1 2 3 5. 1 2 3 5. दिख रहा है ना? वाला नहीं दिख रहा है क्या? भी लिख लेना 1 2 3 5. Okay, so if I want to write my function f a b c, I can write sum of minterms, that means a bar b bar c. Okay, plus, okay, मैं जगह पे नीचे लिख रहा हूँ plus a bar b c bar. Okay, then if I want to write third term is a bar b c, and fourth term is a, fourth term is a b bar c. Okay, so my function is equal to sum of minterms for which the function value is 1. तो अब मेरा फंक्शन क्या हो गया? ये हो गया a बार b बार c, a बार b c बार, a बार b c, a b बार c. ओके, पर मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या था? ये था. ओके, तो या तो इस फंक्शन को इसमें लेके आ जाओ, या इस फंक्शन को इसमें लेके जाओ. सर M4 में a b बार c बार होगा ना इधर? M4 कौन सा है? M4 ये वाला. सर आपने इधर, यस सर. हाँ, तो M4 में लिखा कहाँ है? सर इधर इधर इस साइड. नहीं, इधर की साइड जो आप सम ले रहे हो टोटल वाला. सम में इन 4 टर्म का ले रहा हूँ. इसका. अच्छा सर. ओके, ओके सर, ओके. जो टर्म जिनके लिए फंक्शन 1 है, तो मैंने क्या लिया? 1 2 3 5 तो लिया, 4 का लिया है. ओके, 1 2 3 5. ओके सर. ओके, नाउ ये दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट होने चाहिए. तो या तो आप इसको इसमें प्रूव कर दो, या इसको इसमें लेके जाओ. अब इसको लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और देखो ये दोनों फंक्शन बराबर है कि नहीं है. मैं इस टेबल को फिर यूज करूंगा, इसलिए मैं मिटाने रहा हूँ. इस फंक्शन को लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड देखो तुम्हारा फंक्शन सेम है कि नहीं है. हाउ कैन यू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? C plus C bar यस, वेरी गुड. यस, और इसमें A plus A bar. यस, वेरी गुड. लिखो, इसको कंपेयर करो, दोनों सेम है कि नहीं है. तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ. ठीक है, मैं ही कर देता हूँ. ओके, सो नाउ इफ आई वांट टू सम, ओके, so if I solve this function, okay, I can write a bar b c plus सेम है सर. सेम है ना? फिर प्लस b a प्लस a bar सेम है. सेम है. ओके, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना? कर लोगे ना तुम लोग? b c. ओके, अब इसको खोलोगे तो कुछ टर्म सेम है सर. हाँ, कुछ हम सेम होगी तो आगे फंक्शन, इसका फंक्शन इक्विवेलेंट हो गया. ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये तो प्रूव हो गया ना कि यू कैन राइट योर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ मिनटर्म्स. मिनटर्म्स कौन सी लेनी है? जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है. ओके, सो ये एक चीज हो गया आपका एसओपी. ओके, एसओपी फॉर्म में कैसे? बात. हाँ सर, हम जब हाई इनपुट की बात करते हैं तो 1 को मानते हैं, और लो की बात करते हैं तो 0 को मानते हैं. हाँ, तो सर फिर मिन टर्म में हम 1 आउटपुट ले रहे हैं, और फिर मैक्स टर्म की यदि बात. उसका नाम से कंफ्यूज मत हो भाई. हमको मिनट जब भी हम एसओपी फॉर्म में लिखेंगे ना, मैंने ऐसा बोला ना, जब भी एसओपी हाँ, फॉर्म में सर. लिखेंगे तो 0 को ए बार लेना है. ओके, और 1 को जो वेरिएबल ए लेना है. ओके, एसओपी फॉर्म में. पीओस में हम इसको मैक्स टर्म बोलते हैं. ओके, हम इसको वो बोलने का तरीका है. मैक्स में ये उल्टा हो जाएगा. मैक्स POS में में. मैक्स में ये उल्टा हो जाएगा. वेरी गुड. ओके, मैक्स में ये उल्टा हो जाएगा. अब अगर मुझे किसी सर? फंक्शन, हाँ बोलिए. मैं बोल रहा था कि ये हम्म. a बार b प्लस b बार c अगर गिवन हो तब तो वो 4 टर्म लाना इजी है. हाँ. लेकिन अगर वो हमको जो मिल रहा है वो a बार b बार c प्लस a बार b c एक्सेट्रा है, उसको उससे इक्विवेलेंट है, वो कैसे चेक कर ले एकदम में? उस जो फंक्शन इसको खोलोगे ना, इसमें वो ये 4 टर्म ही होनी चाहिए. हाँ, वो तो हमको पता है ये फंक्शन है, इसीलिए अगर ये फंक्शन कैसा पता है भी? मैं तो ये फंक्शन तुम भूल जाओ. ठीक है, हाँ. अब ये टेबल है, इससे फंक्शन लिख लिया मैंने. हाँ. फंक्शन लिख लिया. हाँ, ये लिखिए. मेरा फंक्शन है, ये तो मैं रीचेक करने के लिए आपको बता दिया है कि मैंने पहले फंक्शन बता दिया. अब इस पे वैल्यू आपने फंक्शन लिख लिया. अगर आपको फंक्शन पता नहीं है तो टेबल से फंक्शन लिख दिया आपने, और यही आंसर है आपका. तो मैंने वेरीफाई करने के लिए दो बार मतलब लिखा है. सर जो ये यदि हम लास्ट में ये फंक्शन को ओपन नहीं करते
हाँ स्टैंडर्ड हाँ एसओपी में। तो सर जो आपने 4 टर्म लिखी बस वही आंसर है। वही आंसर है बस, ठीक है। और अगर बाद में उसको सिंप्लीफाई करना अलग चीज है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है कि सिंप्लीफाई कर लिखो, एग्जाम में सर अगर अभी हमें अभी वो सब मत पूछो, अभी सिंप्लीफिकेशन की बात करी नहीं मैंने एक फाइल लिखा है कि एज अ boolean function can be written as a sum of those min terms for which function value is 1, that's it, okay। तो मैं फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, बस ये चीजें, मैंने फंक्शन लिया, टेबल बनाई, टेबल से फंक्शन लेकर दोनों फंक्शन को मैंने सेम प्रूव कर दिया, ओके। दैट मींस व्हाट एवर फंक्शन वी आर राइटिंग हियर दैट इज करेक्ट। अभी आप चेक कर सकते हो, आप कोई नॉन ट्रूथ टेबल ले लो एक्सोर गेट की या एक्सनोर गेट की, और उससे फंक्शन लिखो, तो आपको जैसे एक्सोर गेट की टेबल बना के लिखोगे एबीसी में या टू वेरिएबल्स में, आप फंक्शन लिखोगे वापस, तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा, एक्सोर का फंक्शन मिल जाएगा, ओके। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अभी आप कोई नॉन ट्रूथ टेबल ले लो एक्सोर गेट की या नॉर गेट की, एंड गेट की ले लो, टेबल बना दो एबीसी एंड गेट की, और फिर उस टेबल से आप वापस फंक्शन लिख दो, हाँ सर, सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इजी है एक्चुअली, ठीक है ना? मैं गलत कर रहा था हाँ, वैसे। तो आप कोई भी नॉन फंक्शन लेके उसकी ट्रू टेबल लेके एंड गेट की लिख लो, और गेट की लिख लो, फिर उससे आप फंक्शन लिख लो, ओके, और आपका दोनों फंक्शन सेम आएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। किसी को डाउट है क्या? बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट इसी पे पूरा डिजिटल बेस है आपका आगे। So okay, so this is your, we have written the function in term of what? SOP. Okay, now if I want to write the function in terms of POS, okay, so POS के लिए मैं क्या करूंगा? I will write max terms. Okay, I will write max term. Okay, फंक्शन ये ले रहा हूं मैं ताकि हमको पता रहे, ताकि बाद में प्रूव कर सके इस फंक्शन सेम है। ओके, अब इस फंक्शन को मुझे अगर POS फॉर्म में लिखना है तो कैसे करूंगा? इस फंक्शन को POS फॉर्म में लिखो, a bar plus b into b bar plus ओके। इस फंक्शन को मैं अगर पी लिखूंगा तो मेरा फंक्शन आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, ओके ओके, a बार प्लस बी प्लस सी, ओके। मैं लिख दे रहा हूं, क्या बताना सही है कि नहीं है, a प्लस बी बार प्लस सी एंड देन a बार प्लस बी बार प्लस सी, ये टर्म आ रही है क्या? a बार बी बार प्लस सी बार, हाँ, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, दो टर्म, ये तीसरी टर्म क्या है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, जैसे मल्टीप्लिकेशन में है, आ रहा है ना, राइट। अब मैं सॉल्व करूं उसको, क्या बोलते हो? Yes, sir. यू कैन राइट इन सर पीओस, इसको तो यू कैन राइट पीओस फॉर्म ना, दिस यहाँ पे सी प्लस सी सी डैश कर दो, यहाँ पे प्लस ए डैश कर दो, अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन से खोल दो जैसे मैंने पहले करा था, ओके। तो मैं एक एक टर्म लेता हूँ, ओके। सो मैं पहले ले रहा हूँ ए बार बी, ओके। इसको मैं ले सकता हूँ व्हाट, ए बार बी प्लस सी सी बार, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए बार बी प्लस सी, सॉरी ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, ओके। सो ए बार प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार, दो टर्म आनी चाहिए, ए बार प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा है, फिर ए बार प्लस बी एंड प्लस सी बार, ओके। ये नहीं आ रहा क्या, ए बार, हाँ ये ए बार क्या है यहाँ से, यू हैव, लेट मी राइट अगेन, I have term a bar b, okay, so a bar b, okay, तो इसको पहले मुझे करना पड़ेगा ड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट, ओके, यू जस्ट कन्वर्ट, मैं मिटा देता हूँ, वापस करूंगा और क्या, आपके लिए समझाने के लिए पूरा मिटा देता हूँ, दोबारा करेंगे और okay? So I have this term, okay. Now I want to write in POS form. So what I'll do, I will write a bar plus b, okay, dot, okay, b bar plus c, ऐसा लिख सकते हैं क्या? डुअलिटी से जहां पे डॉट है उसको प्लस कर दिया, जहां प्लस है उसको डॉट कर दिया, डॉट है उसको प्लस कर दिया, तो इसको ओपन कर दो, ओके।
सो अब ये क्या है, पीओस फॉर्म में, दिस इन पीओस फॉर्म बट नॉट स्टैंडर्ड पीओस फॉर्म। स्टैंडर्ड पीओस फॉर्म के लिए क्या करेंगे, ए बार प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ओके। फिर हियर बी प्लस सी प्लस ए बार, okay. Now I can write a bar plus b plus c, okay. So a bar plus b plus c bar, okay. Similarly इसको कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a plus b bar plus c, okay, and a bar plus b bar plus c, यार है, यस सर। ओके। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो ये मेरा फंक्शन है, ये एक्चुअली ये वाला मेरा फंक्शन है, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं टेबल से जो फंक्शन निकालूंगा वो इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, ओके। सर वो डुअल लिखने के लिए वो कुछ साइन हाँ भी चेंज करना था, किसमें, डुअल फॉर्म में लिखने के लिए। हाँ ड्यूल फॉर्म में क्या करते हैं, जहां डॉट आ रहा है वहां प्लस कर देते हैं, ठीक और है। बी को बी बार नहीं हाँ वो नहीं करना है, करना पड़ेगा। वो नहीं है, वो 1 0 1 0 करना पड़ता है, इसमें नहीं करना है, फंक्शन को नहीं, वेरिएबल को नहीं करना है, ठीक है। और प्लस अच्छा डॉट कर दिया या प्लस कर दिया, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, वापस ही आना चाहिए, आ रहा कि नहीं आ रहा चेक करो। चेक करने का तरीका तो यही है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए, वापस आना चाहिए। सॉल्व करके देखो, उसको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको सही मान लेता हूँ, ओके। अभी कुछ होगा तो फिर देखते हैं दोबारा, ठीक है। सो नाउ दिस इज माय टर्म, ओके। इसको सिंपलीफाई करोगे तो वापस ये आना चाहिए। सो नाउ व्हाट आई विल डू, I'll again make the table, okay. So okay, so let me write a table, okay. So we have a b c, okay. So what I write, 0, okay, 0 0 0 1 1 1 1, okay. This is the first row, second row, third row, fourth row, fifth, sixth, seventh, eighth row, okay. So now you can write 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, okay. Now if I write function values, okay, function value क्या थी हमारे पास में, function value थी, function value was 0 1 1 1 0 1 0 0, okay, thank you, okay. Now you have to write max terms, okay, max terms. So this is your table, okay. So this is your decimal, okay. So this become now 0 1 2 3 4 5 6 7, okay. So now max term, okay. Fundamental sums or max terms, fundamental sum और max terms, okay. अब आपको क्या करना है, वापस लिखना है इसको 0 0 0। अब पीओस फॉर्म में लिखने के लिए इसको 0 को हाई मानेंगे, ओके। तो 0 को विल राइट a, okay, 0 will write a, b. Now instead of product we are writing sum, okay. 0 0 1, so 0 is a, b 0 is b, or ये c bar, okay. This will become what, 0 0 means a, b means b bar, okay, c means 0 0 means c। ये समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये आ रहा समझ में ना। Yes, sir. So 0 0 means a, 1 means b bar, and c means c bar, okay. Again 1 0 0, okay, 1 0 means a bar plus b plus c, okay. Now you can write 1 1 0 1, 5 means 1 0 1, so 1 1 is a bar, 0 is b and c bar, okay. And 1 1 0 1 1 0 means a bar plus b bar plus c, okay. And last term is what, a bar plus b bar plus c bar, ठीक है। अब इसमें उल्टा करना है, अब इसमें देखना है कहां कहां पे 0 है। अब नाउ दीस आर मैक्स टर्म्स,
ओके दिस आर मैक्स टर्म, इसको बोलेंगे m0 टर्म, m0 कैपिटल m0, कैपिटल m1, कैपिटल m2, कैपिटल m3, कैपिटल m4, कैपिटल m5, कैपिटल m6, capital M7. Okay, now we have to find the term. Okay, now my function A, B, C will be equal to product of max terms. Okay, those max term for which the function value is 0, that means M 0. Okay, 0, then M4, then M6. Okay, then M7. तो जो मिन टर्म लिखी थी हमने उसमें एसओपी में, उसको माइनस करके जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो सब क्या आ जाएंगी, मैक्स टर्म में आ जाएंगी. वहां पे क्या था 1 2 3, ओके 5 था. और ओके अब यहाँ पे क्या, वहां पे क्या था, 4 टर्म थी, M1 M2 M3 M5, कुल टोटल 8 टर्म्स हैं. बाकी बची हुई टर्म्स यहाँ पे आ गई आपके पास में. ओके so that means this is equal to what, the same function is equal to sum of m मतलब 1 2 3 5. okay or you to write in the form of product of sum, so बची हुई term 0, okay 0 4 6 7. okay now what is m0? M0 is a plus b plus c. okay 4 is what, 4 term is your this one. 4 is a bar 1 bc, a bar plus bc. okay then you have this one m6 is your 110 मतलब क्या है, a bar plus b bar, okay c. okay and the last term is what, last term is 1 तो a bar plus b bar plus c bar. okay अब जो मैंने फंक्शन लिखा था मैच कर लो, सेम है कि नहीं है. a plus bc, okay a bar plus b bar. okay so I have a plus bc, correct, a plus bc, then I have a bar plus bc. okay then I have a bar b bar c bar, very good. then I have a bar, check करो सेम है कि नहीं है. सर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार टर्म तो नहीं था. तो कुछ मिस्टेक किया है लिखने में. सर नहीं आ रहा है सर, ए बार प्लस बी बार थर्ड टर्म नहीं आ रही है. थर्ड टर्म देखो मैंने लिखने में, फर्स्ट और थर्ड टर्म नहीं है. मैंने लिखने में तो गलती. फर्स्ट टर्म भी नहीं है. भाई m0 क्या है, ये आपका m0 है. ओके तो a प्लस बी सी, ये टर्म तो था, ये टर्म तो उसमें है ना, a प्लस बी प्लस सी टर्म, ये टर्म तो है उसमें. ठीक है एंड नाउ 4, नो सर ये टर्म नहीं. फर्स्ट टर्म भी नहीं है. ये टर्म कैसे नहीं था, टर्म फंक्शन में टर्म नहीं था. फर्स्ट टर्म भी नहीं है. फर्स्ट टर्म नहीं. ए बार प्लस बी प्लस सी फर्स्ट टर्म. a bar plus, just let me check sum of part. okay चलो मैं पहले ये इसको लिखता हूँ. ये बताना सही है कि सही लिख रहे हैं. ये a प्लस बी सी m0 आएगा, फिर m4 क्या है, m4 100 है. ओके 100 ए बार प्लस a बार, ओनली थर्ड टर्म है. फिर क्या है प्लस a बार b प्लस c. ओके एंड देन 6 for 6 टर्म. 6 मतलब क्या हो गया आपका 110 का मतलब a बार प्लस b बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस c. एंड फोर्थ टर्म क्या है, a ए बार बार बी बार सी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी. प्लस सी बार. ओके तो ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन करेक्ट है. अब इसको चेक करते हैं, इसमें हमने मिस्टेक तो नहीं की करने में. ओके इसको चेक कर लेते हैं एक बार. ओके इसको डुअलिटी से हमने सॉल्व किया था तो हो सकता है कुछ गलती करी हो. तो ये आपका मेन फंक्शन है. अब इस फंक्शन को लिखना है आपको एसओपी के फॉर्म में. ओके जस्ट गिव मी वन टर्म, मेरे पास लिखा करा हुआ सॉल्व करा हुआ है. ओके सो इफ आई वांट टू सॉल्व दिस वन, ओके तो a bar plus b bar plus c. okay so what I have, इसको अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं. ठीक इसको मिटा दे रहा हूं मैं. okay so now I have term a bar b bar plus c
I had this term a bar b bar plus c, okay, and then I had term a bar b bar plus ये भी है, a plus bc भी है, और a bar सही term तो सही आ रहा है, okay. So our function is what? Our function is this a b c, okay. इसको मैं क्या ले सकता हूँ? a bar ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ओके. इसको ड्यूअलिटी से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, what I have done, I have applied distribution, okay. So distribution means I have applied a plus c and a bar b plus b plus c, okay. Okay. So what I have done, okay, I was writing like this way, okay, b plus c, okay. So I was writing this is a c b term, okay. So if I solve this one, this will give me what? A bar plus b bar, okay, प्लस b प्लस c. इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? सर हम फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म एक साथ लेते हैं और सेकंड और थर्ड ये तो अपना वो है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव है ना. तो हमारा एक्चुअली b यहाँ आ रहा था ना, वो b लेते नहीं है, तब जो b आ रहा था सॉल्व हो जा रहा है. हाँ हाँ सर ट्रांसपोजिशन से हो रहा है हाँ, ट्रांसपोजिशन से हो रहा है ये, ठीक है. बी बार को मैं साथ में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वन हो जाता है, वो तो उल्टा टर्म को कम कर रहा है ना हमारी. बी बार को मैं, अगर हमको तो टर्म जोड़नी है, अब मैं यहाँ बी बार सी बार लिखूंगा तो बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा, तो हमारी टर्म्स उल्टी कम हो जाएंगी. ओके, मुझे टर्म्स बढ़ानी है, तो आई एम राइटिंग दिस वे. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ओके, ए बार प्लस बी प्लस सी, ओके. इसको सॉल्व कर लो, टर्म आ जाएगी. और ये तो फिर चेक करेंगे कल एक बार फिर से. ओके, ये क्या तरीके? सर हाँ बोलिए. सर वो जो आपने पहले डुअलिटी थ्योरम वाला लगाया था, हाँ वो गलत क्यों था? हाँ, तो उसमें शायद ना हमको वो करना पड़ेगा, जैसे वो बोल रहे थे ना, ए इनवर्स को बी इनवर्स करते हैं, 1 को 0 0 से 1, उस तो हमने किया नहीं था, तो वो भी करके देख लो. इफ यू ट्राई दैट वन, ओके, डुअलिटी थ्योरम. मुझे अच्छा बोल रहा था ना कि शायद साइन चेंज करना पड़ता है, 1 को 0. सो इफ यू अप्लाई डुअलिटी थ्योरम, दिस विल बिकम व्हाट? ए प्लस बी बार, ओके, डॉट दिस बिकम सी बार प्लस बी. इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? एंड इसको सर ये कैसे आ गया सर? भी डुअलिटी थ्योरम से. डुअलिटी इनटू को प्लस और प्लस को हाँ ठीक है, तो उससे हमारा आंसर नहीं आ रहा था ना, तो उसमें हम जब डुअलिटी थ्योरम लगा रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे? 1 को 0 0 को 1 भी तो कर रहे थे. अच्छा हाँ सर, तो वो करके देखो, अब इससे आ रहा कि नहीं आ रहा आंसर? ये आपका समझ गया सर. अब इससे आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, चेक करो, ठीक है. वरना इसको हम कल चेक करेंगे एक बार. ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको चेक करो. इस फंक्शन को आपको इस मैक्स टर्म की फॉर्म में लेके आना है. ओके, दिस यू ट्राई. ओके, मैं भी चेक करता हूँ क्या मिस्टेक हुई है. पर लाइक वी कैन राइट सम ऑफ टर्म्स, ओके, वी कैन आल्सो राइट फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म्स आल्सो. ओके, नाउ वी विल क्विकली डू वन प्रॉब्लम. ओके, नहीं सर, हाँ, डुअलिटी से नहीं आ रहा नहीं आ रहा है. कैसा पॉसिबल? बट आप जो पिछले वाला जो ट्रांसपोजिशन, हाँ तो उसमें आ रहा है. हाँ, तो ठीक है. ट्रांसपोजिशन पे आ रहा है. अच्छा, तो इसमें देखो, इसमें ड्यूअलिटी से क्यों नहीं आ रहा? तो ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, चेक करो, मैं भी चेक करूंगा. सर डुअलिटी से तो उसका डुअल आएगा ना. तो डुअल तो फंक्शन तो सही, फंक्शन तो एक बार आएगा. हाँ, वो फंक्शन चेंज हो जाता है ना, कि चेंज नहीं होता, नहीं, वैल्यू तो सेम आती है ना उसकी. डुअलिटी से लिखने से वैल्यू तो सेम आनी चाहिए. ओके, तो जो सर मैंने आ रहा है फंक्शन, हाँ? हमने जो अभी आपने मल्टीप्लिक ये दिया है ना, वो ऐड करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है वो सेम ही आ रहा है ट्रांसपोजिशन से. इसके पहले जो हमने दिया था. हाँ, हाँ ट्रांसपोजिशन से तो आएगा. ओके, ट्रांसपोजिशन से तो आएगा. डुअलिटी से चेक करना क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसमें हमने कभी यूज नहीं किया ना इसको. तो फंक्शन तो आएगा. हाँ, फंक्शन तो आएगा ही, फंक्शन तो आएगा आपका. ओके, सर वो डुअलिटी क्या था एक्चुअली? डुअलिटी था कि जो प्लस है उसको डॉट करो, और 1 को 0 करो, 0 को 1 करो. ओके, हाँ, तो रिजल्ट भी तो डुअल आना चाहिए ना उसके लिए. भी वो बोल रहा था कि कोई थिंग है, ओके, इसको आप करोगे, तो मैंने आपको 2 फंक्शन इक्वल भी करके बताए थे, तो उससे हमारे पास नए एक्सप्रेशन आ जाते हैं. ओके, लाइक 0 into 0 equal to जैसे 0. हमारे पास था a plus 0. a plus 0 क्या होता है हमारा? a आता है, फिर हमने लिखा था a dot 1 a. ओके, सो ये इक्विवेलेंट तो नहीं है ना, ये तो डिफरेंट है ना, ड्यूल है ना. सही. ओके, तो वो ड्यूलिटी से नहीं होगा जैसे मैंने किया है.
ट्रांसपोजिशन से आपको वैसे ही करना है। अच्छा सर। ओके ठीक है। सो दिस इज फंक्शन। नाउ इस पे दो प्रॉब्लम्स आई हैं, एक जैम में आई है और एक आपके नेट में आई है। ओके तो नेट वाली प्रॉब्लम सिंपल है और जैम में थोड़ा सा, जैम में भी कभी कभी थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम हो जाता है। सो फर्स्ट वी विल सी द प्रॉब्लम ऑफ नेट। ओके जो नेट में प्रॉब्लम आई है वो चेक कर लेते हैं एक बार। एक्चुअली एक टाइम पे एक ही करना चाहिए, एसओपी करना चाहिए पहले, फिर पीओएस करना चाहिए। हमने साथ में कर लिया तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ओके तो मैंने टेबल एक साथ बना ली थी तो मैंने कहा सॉल्व कर ही देते हैं इसको। So now you have one problem in NET 2018. NET 2018. Okay. So they have given one table. Okay. A, B, C. Okay. And Y. Okay. टर्म उन्होंने 8 या 7 ही दिए और उससे हमको फर्क पड़ता नहीं, आंसर आ रहा 0 0 0 0 ओके 1 1 1 ओके। Okay now 0 0 and 0 0 okay 1 1 0 1 1 okay 0 1 0 1 0 0 1 and then we have y equals to 1 0 0 1 1 0 1 ओके ये दे दिया है। अब बोल रहा है कि फंक्शन बताओ, हम टोटल दे दी है और फंक्शन बताओ एसओपी के फॉर्म में। ओके सो एसओपी के फॉर्म में क्या फंक्शन क्या होता है, सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स जिसके लिए क्या है आपका आउटपुट 1 है। ओके तो ये आउटपुट 1 है, ये वाला, एक तो ये वाला 2 3 4 मिन टर्म लेनी है आपको। 4 मिन टर्म कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी बार सी बार। ओके देन दिस विल बिकम this is one this is what a bar bc okay a bar bc and the third is a b bar c bar and the fourth one is abc okay ये टर्म्स हैं और the function will be equivalent to this function और ये आंसर दे रखा है उसमें क्वेश्चन में। सर इनफ इंफॉर्मेशन तो नहीं है इधर भी, क्या क्या है इंफॉर्मेशन इनफ तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन इनफ भी नहीं है भी ये क्योंकि आउटपुट एक टर्म 0 1 दोनों हो तो सकता है ना। उसमें क्या वो उन्होंने ऐसा दिया है, उन्होंने ऐसे ही बना के दिया है। ठीक है तो उन्होंने बोल दिया कि जो जो 1 है वो मिन टर्म्स आप ले लो। ठीक है तो जो जो 1 था हमने वो मिन टर्म्स ले लिया हमने और आंसर में यही दे रखा है, इनका सम ही दे रखा है, आप चेक कर लेना 2018। अच्छा ओके तो सम इज व्हाट, सम फंक्शन, द फंक्शन y is ओके a bar b bar c okay plus a bar b c okay plus a b bar c bar plus a b c okay now जेम में भी प्रॉब्लम आया है, वो काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सॉल्व करने वाला है तो जेम वाला भी कर लेते हैं हमको। सर हाँ यहाँ हमने प्रोडक्ट ऑफ सम यूज किया ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स मिन टर्म सॉरी सम ऑफ, हाँ हाँ लेकिन दूसरा यूज किया तो भी चलेगा ना, मतलब 0 लेके ये वो तो जो वो आंसर जैसे जिस टर्म में जिस फॉर्म में दे रखा है वो चेक करना पड़ेगा ना एग्जाम में, जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में दे रखा है। सर पहला टर्म सी बार होगा, ना पहला टर्म पहला टर्म सी बार है 0 0 0 ए बार बी सी ए बी बार सी बार ए बी सी ओके। तो ये आसान है, करने का तरीका तो पता चल गया ना आपको सबको, फिर जब क्वेश्चन कर देंगे होमवर्क के लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, तरीका तो पता चल ही गया आपको। अब एक क्वेश्चन है जेम में, उससे आपका आंसर चेक हो जाएगा, उसमें अच्छे से दे रखा है। हाँ तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 2 मार्क्स के पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स का भी। टाइम तो ज्यादा लगता नहीं ना, टाइम तो फटाफट हो जाता है। ये आपको क्या है, टेबल 2 वेरिएबल की टेबल बनानी है, 3 वेरिएबल की टेबल बनानी है, तो आप फट से लिख दोगे। ओके और टेबल दे ही रखी, आपको टेबल दे ही रखी, आपको तो देखना है बस आउटपुट 1 कहाँ पे है। तो 1 जो टर्म्स है m0 जो भी टर्म्स है, यहाँ पे क्या था m0 जो भी टर्म्स है वो फट से टर्म लिख देनी है आपको, आसानी से हो जाता है।
1 मिनट भी नहीं लगेगा करने में, क्योंकि टेबल तो बना के दे रखी है ना आपको, जी सर। बस आपको वहां से मिन टर्म से तो पहचाननी है। 0 है कि 1 है, और 0 है तो 0 कैसे लिखेंगे, 3 वेरिएबल में 1 है तो 1 को कैसे लिखेंगे, तब पता ही है डेसिमल में। ओके, सो नाउ वी हैव प्रॉब्लम इन IIT JAM, okay, 2010. Okay, so they have given function, 3 functions they are given, A, B. So they are given A, B, C, and they got function F. Okay, so this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so I have what, A is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, 0, 1, and the function value they have given. Okay, the function value they have given 1, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 1, 1, 1, 1, and last term is 0. Okay, so the min terms corresponding, this is A, B, C bar. Okay, then 1 is corresponding A, B bar, C bar. Okay, 1 A, B, B bar, C bar. The fourth is 101. 101 is A, B bar, C. Okay, the fifth is the fifth. Okay, so this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so they are given 0. Okay, fourth term, fifth term, and sixth term. Sixth term क्या हो जाएगी आपकी A, B, C bar. Okay, आपका फंक्शन, अब फंक्शन लिख दो, फंक्शन लिख दो। A bar B bar C bar plus A B bar C bar Okay, so plus I'm A writing, B bar. इसको रब कर दूं क्या टेबल को? Yes. Yes sir. Okay, जगह नहीं मिले लिखने की ना, तो टेबल। Okay, now I'm writing the output, and then you have to simplify that output. Okay, now if I write the function ABC, that is equal to A bar, B bar, okay, C bar, A, B bar, C bar, then A, B bar, C, A, B bar, C, okay, and the last term is A, B, C bar, A, B, C bar. Okay, now simplify this function. Simplify this function. I am giving it the answer. Okay, the answer of this function should come C. मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आपको लेके आना है। आंसर इज गिवन C bar A plus B bar plus AB bar। ये आंसर दे रखा है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। यू विल गेट दिस आंसर। दिस इज गिवन एज ऑप्शन डी। ट्राई करो और मुझे अभी भेजो। अभी इसको करके भेजना है, क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद में मुझे इसको भेजना है आपको, ठीक है? या इससे आप ये ला पा रहे हो नहीं ला पा रहे हो? बता देता हूँ, सी बार कॉमन, सी बार पहले कॉमन ले लो सबसे। If I want to write F A B C, okay, if you take C bar common, okay, मैंने सॉल्व कर दिया था, okay, so C bar common you get A bar, B bar, okay, then A B, okay, and then A B bar plus A B bar, okay, C bar, C bar, if you call it A bar, B bar, okay,
AB bar, is AB and AB bar. Okay, A B bar. इसमें और क्या कॉमन आएगा? C bar. Okay, and last term will be AB, will be remaining A B, term which will be remaining A B bar C, A B bar C, A B bar C. इसको सॉल्व करो. अंदर फिर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे फिर कॉमन हो जाएगा, बी बार कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो ए प्लस ए बार ओके 1 हो जाएगा, बी बार ही बचेगा, फिर ये और खुल जाएगा आगे. सिंपलीफाई करो, आंसर ये लेके आओ, वरना मैं शेयर करूंगा आंसर नहीं होगा तो. करोगे कि मैं करूँ यहाँ पे? कर लेंगे। कर लेंगे सर। कर लो, ठीक है. नहीं तो कल दोबारा करेंगे, टाइम कल से क्लास आएगी, दोबारा करेंगे. ओके, थैंक यू, आई एम स्टॉपिंग हियर. और इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, हम कल फिर रिवाइज करेंगे, जो और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये पक्का हो जाए. तो इसी में पूरा डिजिटल बेस्ड आपका आगे. सर सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पीडीएफ बुक पूछ रहे हो ना? सर पीडीएफ फॉर्म बुक चाहिए पीडीएफ फॉर्म में? हाँ, मैं भेज दूंगा आज. आपको बुक चाहिए ना, ई बुक चाहिए? यस सर आज भेज दूंगा. थैंक यू सर. ओके, तो आई एम वेटिंग, कोई स्टूडेंट खत्म करके बता दे तो. भी इसमें आंसर करने के लिए ट्रिक है, सिंपल करना पड़ेगा. ये टर्म तो आसानी से आ जाएगी, पहले ये टर्म आएगी, ठीक है, अब इस टर्म को फिर और सॉल्व करना पड़ेगा. सो आई एम स्टॉपिंग हियर. ओके, करके भेजो. थैंक यू सर।